Very good afternoon, students. How are you? I hope you all are fine. Now, today we will discuss PT first syllabus for biology class 8th. Okay? It is chapter 1st crop production and management, chapter 2 synthetic fibers and plastics, chapter 4 metals and non-metals. Now, student, first of all, we will discuss chapter 1st crop production and management. Crop production and management. Students, you know very well, we need food, clear, to growth, to repair our cells, clear, and to maintain healthy body. So, कहाँ से हमें फूड मिलता है बेटा? You know very well, we get food from plants. Indirectly हम plant पे depend होते हैं. So, we will discuss in this chapter how plants produce and production of plants, how can be produced, clear, and how can we manage these plants. All, what is crop? When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. It means plants, एक सेम काइंड के प्लांट जब लार्ज अमाउंट में एक पर्टिकुलर प्लेस में कल्टीवेट किए जाते हैं. व्हाट इज मीन ऑफ कल्टीवेट? कल्टीवेट मीन्स रेयरिंग और रेजिंग ऑफ प्लांट्स. ओके, दिस इज नोन एज क्रॉप. क्रॉप मीन्स एक पर्टिकुलर एक लार्ज एरिया में, इट मीन्स सेम काइंड की क्रॉप, और जो क्या हो बेटा लार्ज नंबर में हो. ओके, दीज आर नोन एज क्रॉप. There are two types of crops, Rabi crops and Kharif crops. Okay, based on season, there are different types of crops like cereals, pulses. Cereal means wheat, rice, maize. Pulses, variety of dals, beans and grains. Vegetables, spinach, cauliflower, potato, you know very well, tomato, all are vegetables. And fruits also, apple, mango, guava, you know very well, these all are fruits. These all are crops based on season. Okay, now but main types of crop, जो आपकी main types हैं वो हैं बेटा आपके two types, rabi crops and kharif crops. Now what are rabi crops? They are generally planted in November and harvested in April. इन्हें प्लांटेड किया जाता है नवंबर में और हार्वेस्ट किया जाता है अप्रैल में. लाइक wheat, barley, pea and gram are example of rabi crops. You can see in diagram also wheat, pea, barley and gram. Second type is kharif crops. They are generally planted in June and harvested in October. Like rice, maize, cotton and groundnuts are example of kharif crops. These all are, you can see in diagram also. Okay, now for production of crops, clear, क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए फार्मर क्या स्टेप फॉलो करते हैं या फार्मर्स क्या स्टेप परफॉर्म करते हैं. व्हाट एक्टिविटीज परफॉर्म बाय फार्मर टू प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स? दीज आर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. What are basic practices of crop production? These are agricultural practices, those performed by farmer to production of crop. These are first of all preparation of soil, sowing, adding manures and fertilizers, irrigation, protecting from weeds, harvesting and storage. These all are agricultural practices for production of crops performed by a farmer. First step is soil preparation. Okay students, you know very well, आपको कोई क्रॉप कल्टीवेट करनी है, फार्मर को कोई क्रॉप कल्टीवेट करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी नीड होगी? सॉइल की. ओके, एक प्लेस की नीड होगी. जब प्लेस उन्हें स्पेस प्रोवाइड किएंगे तभी तो वहाँ पे क्रॉप प्रोवाइड होगी, क्रॉप प्रोडक्शन होगा. तो सबसे पहले किसकी नीड है बेटा? आपका सॉइल preparation. What is soil preparation? Soil preparation involves plowing, labeling, applying fertilizers. These all steps include in soil preparation. In soil preparation, first step is plowing. The process of loosening and turning the soil is called plowing of
और टिलिंग। इस प्रोसेस में क्या होता है बेटा, जो आपकी टॉप लेयर की जो सॉयल होती है, इट इज़ टॉप सॉयल लेयर। टॉप सॉइल की लेयर की जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल के पार्टिकल्स, बिग पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, ब्रेक्स इनटू क्रम्स। जो आपके बिग पार्टिकल्स किस में ब्रेक हो जाते हैं, क्रम्स में। दीज आर ऑल्सो नोन एज चंक्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज प्लॉइंग और टिलिंग। ओके, क्वेश्चन कैन बी पुट अप क्लियर इन एग्जाम. Name the crumbs are formed in which process? They are formed in plowing or tilling. Okay, it means topsoil, जो topsoil layer होती है वो mix हो जाती है and break into chunks or crumbs. Now second step is labeling. ओके बेटा, आफ्टर प्लॉइंग के बाद जो चंक्स बन गए आपके बिग पार्टिकल सॉइल के जो पीसेस बन जाते हैं, उन पीसेज को अब क्या करना है, उन्हें एक लेबलिंग करनी है, उन्हें प्लेन भी तो करना है, तभी तो सॉइल वहाँ पे हम सीड सोन कर सकते हैं. क्लियर. एवन आफ्टर प्लॉइंग द क्लम्स ऑफ सॉयल में रिमेन द फील्ड. जो आपके सॉइल के क्रम्स होते हैं या जो आपके लम्स होते हैं वो फील्ड में रिमेन होते हैं. दीज आर क्रस्ट यूजिंग वुडन आयरन प्लैंक कॉल्ड लेबलर्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेबलिंग. एक आयरन और वुडन का एक टूल होता है, दिस इज अ टूल. क्लियर. टूल्स यूज फॉर लेबलिंग, दिस इज लेबलर. इससे क्या होता है, वो जो आपके क्रम्स हैं या जो आपके लम्स हैं या जो आपके चंक हैं, बिग पार्टिकल्स, बिग पीसेज हैं आपके सॉइल की, वो एक लेवल में जो अनइवन आपका सरफेस था वो आपका इवन, इट मीन्स वो प्लेन हो जाता है. इज इट क्लियर? दिस इज लेबलिंग. Selection and sowing of seeds. Selection and sowing of seed means good quality healthy seeds should be selected to get quality crops. Clear. Good quality of crops you know very well. अगर हमें good quality की crops की need है, we should select good quality of seeds. And the National Seed Corporation, clear, is involved in the production of good quality of agricultural सीड्स. ओके, जो आपका नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, इट इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करता है, सीड गुड क्वालिटी की सीड को सेलेक्ट करता है. देन दे विल सेंड इट टू नेशनल सीड सेंटर. क्लियर. नेशनल सीड सेंटर होते हैं जहाँ पे सीड की टेस्टिंग की जाती है. टेस्टिंग क्या कि आपका सीड की क्वालिटी कैसी है, हेल्दी होना चाहिए, सीड शुड नॉट बी डैमेज नहीं होना चाहिए, उसका जम्पलाज बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए. तो ये टेस्टिंग होती है आपकी कहाँ पे, नेशनल सीड सेंटर में. दिस इज selection of seeds. Sowing of seeds. Sowing is the most important part of crop production. ओके बेटा, हमने सीड को सेलेक्ट कर दिया, हमने गुड क्वालिटी की सीड कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, उसे सेलेक्ट कर दिया. अब उसे क्या करेंगे, ऑब्वियसली सोइंग करेंगे. क्लियर. बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड. गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी. ओके, सीड ऑफ अ गुड वेराइटी के होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए. एंड फार्मर्स प्रीफर टू यूज सीड्स विच गिव अ हाई यील्ड. तभी हाई यील्ड होगी जब हम गुड क्वालिटी की सीड को सेलेक्ट करेंगे. एंड बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड. इस सीड के लिए कुछ आपके टूल्स होते हैं. व्हाट आर दीज, ये इंपॉर्टेंट टास्क है कि हमें कौन से टूल्स यूज करने हैं. ओके, इसके लिए आपके डिफरेंट टूल्स हैं. सम आर ट्रेडिशनल टूल्स, सम आर मॉडर्न टूल्स. ओके, लेट अस डू एन एक्टिविटी. हाउ कैन यू प्रूव दैट सीड्स आर हेल्दी. कैसे हम पता करेंगे सीड बिल्कुल गुड क्वालिटी के हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर दिस एक्टिविटी वी विल टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर. हम एक बीकर लेंगे, उसे हाफ वाटर से फिल कर देंगे. पुट ए हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टिर वेल. वेट फॉर सम टाइम. इसमें हम एक इट मीन्स हैंडफुल सीड को, हम व्हीट सीड को उसमें ऐड कर देंगे और उसे कुछ टाइम तक के लिए स्टिर कर देंगे. कुछ टाइम के लिए हम वेट करते हैं. व्हाट वी विल ऑब्जर्व, we will observe them. Are there seeds which float on water? Yes, you have seen at home. आपने देखा होगा आपकी मम्मा जब कुकिंग करती है तो कुकिंग से बिफोर राइस या पल्सेज को पहले वॉश करती है. तो वॉश करने के ड्यूरिंग आपने देखा बेटा उसमें कुछ सीड्स ऊपर फ्लोट होते हैं. क्लियर. यस ना. वुड दोज बी ग्लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक. जो लाइटर सीड्स होते हैं, इट मीन्स दे आर डैमेज, वो आपके फ्लॉट होते हैं. जो हैवियर और आपके हेल्थी हैं वो आपके सिंक हो जाते हैं. वाई वुड दे बी लाइटर. वो लाइटर क्यों है बेटा, अगर वो लाइटर है तो क्यों है, बिकॉज दे आर डैमेज एंड सीड्स बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर. क्योंकि वो
सीड्स क्या हो चुके हैं आपके, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, उनका जम्पलाज डैमेज हो चुका है उनके इनसाइड से, तो वो हॉलो हो जाते हैं, हॉलो होने से उनमें वाटर फिल हो जाता है, दे विल बी फ्लोट ऑन वाटर। क्लियर। तो ये आपकी एक्टिविटी है। जो सीड फ्लोट होंगे वो आपके क्या हमें डैमेज हैं, जो आपके इट मीन सिंक होंगे दे आर हेल्दी। ओके ओके नाउ फॉर सोइंग, okay now for sowing there are some tools like seed drill. Seed drill is a modern technology आपकी seed drill की। seed drill is a tools for the sowing. Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractors. ये है ट्रैक्टर की हेल्प से इसे यूज करते हैं। This tool sows seeds uniformly एट प्रॉपर डिस्टेंस। ओके, क्योंकि सीड सोन के लिए डिस्टेंस और आपका डेप्थ बोथ आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द सोइंग ऑफ सीड्स। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्टेंस और यूनिफॉर्मली प्रॉपर डेप्थ ये प्रोवाइड करता है सीड ड्रिल। इट एंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉयल आफ्टर सोइंग। सोइंग के बाद ये सीड को कवर्ड कर देता है सॉइल से, बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। दिस प्रिवेंट डैमेज। और ये जो सीड कवर होने से क्या होगा, जो सीड डैमेज नहीं हो पाएंगे, विच इज़ कॉज्ड बाय बर्ड्स। क्लियर। एंड सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। क्लियर। इसमें आपका टाइम सेव होता है, क्योंकि टाइम टेकन आपका कम है इसमें। इट इज़ अ मॉडर्न टूल्स फॉर सोइंग सीड। आपका जो फॉर सोइंग सीड मैनुअल, आपके मैनुअल वो भी है बेटा, लाइक फॉर मैनुअल। क्लियर। जो हैंड से होता है वो आपका मैनुअल ट्रेडिशनल मेथड है। फॉर सोइंग द सीड्स देयर आर सम मैनुअल मेथड्स, इट मीन ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। क्लियर। एंड इसमें सीड को स्प्रिंकलिंग किया जाता है, बट इसमें सीड कोई नॉट प्रॉपर अप्रोप्रिएट डिस्टेंस और डेप्थ यहाँ पे इंश्योर्स नहीं करता। क्लियर। इन मैनुअल बेटा, दैट वाज इन ट्रेडिशनल मेथड्स। नेक्स्ट स्टेप इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ओके, सीड को हमने सोन कर दिया, अब उसे ग्रो करने के लिए कुछ उसमें फर्टिलाइजर या मैन्योर हम ऐड करेंगे। द सब्सटेंसेज विच आर एडेड टू द सॉयल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड सॉयल, क्लियर, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बेटा ह्यूमन बॉडी के लिए ग्रोथ करने के लिए किसकी नीड होती है, न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है। एंड वी गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। क्लियर। वैसे ही प्लांट्स को भी ग्रोथ करने के लिए किसकी नीड है, न्यूट्रिएंट्स की। एंड प्लांट्स obtain न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स विच सप्लाई मिनरल्स न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। पहले बता चुकी, ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड कंटिन्यू ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल प्रॉपर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। ओके, व्हाट आर फर्टिलाइजर्स? फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेज। मैन्योर है बेटा आपका, वो नेचुरल प्रोसेस से बनता है। क्लियर। ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेज विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। यहाँ पे पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स पता होता है सब फर्टिलाइजर्स में। एंड फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, ये आपका मैन मेड प्रोडक्ट है। एंड द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ हेल्प farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. Now, what are the advantages of manure? Manure के क्या advantages हैं? The organic manure is considered better than fertilizer. Clear? Organic जो manure है वो obviously fertilizer से better है. Why? It enhance the water holding capacity of the soil. फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को। क्लियर। एंड इट मेक्स द सॉयल पोरस एंड ड्यू टू द विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स इजी। उसमें से गैसेस का क्या हो, एक्सचेंज इजीली हो, ताकि प्लांट्स को प्रॉपरली गैसेस पास हो सके। ओके, तो ये क्या है बेटा यहाँ पे, दिस इज अ एडवांटेज ऑफ मैन्योर। ओके, फॉर दिस वी विल डू एन एक्टिविटी। Take moong or gram seeds and germinate them. Select 3 equal size seedling out of these. Clear? हम क्या करते हैं, मूंग दाल या जो आपकी ग्राम के सीड्स होते हैं वो लेते हैं, उनको जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेट करने के बाद जितने भी ये जो सीडलिंग मीन्स आफ्टर जो स्प्राउट्स होते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज सीडलिंग। उनमें सीडलिंग जब आउट हो जाते हैं तो उन्हें हम सेलेक्ट कर देते हैं, गुड क्वालिटी के सीडलिंग्स को। नाउ टेक 3 एम्प्टी ग्लासेज और सिमिलर वेसल्स। हम 3 एम्प्टी ग्लासेज लेते हैं या वेसल्स लेते हैं। नाउ मार्क देम A, B and C. ओके, टू ग्लास A add little amount of soil mix with a little cow dung manure.
ए बीकर में या ए ग्लास में हमने क्या किया, लिटिल अमाउंट में हमने सॉयल ली और उसमें कुछ लिटिल अमाउंट में हमने काउ डंग ऐड किया। इन ग्लास बी पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉयल, ग्लास बी में हमने सेम अमाउंट की सॉयल मिक्स करी विद लिटिल यूरिया, बट इसमें क्या ऐड किया बेटा, यूरिया। ए बीकर में हमने ऐड किया था काउ डंग, इन बी बीकर या बी ग्लास लिटिल यूरिया। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉयल इन ग्लास सी, ग्लास सी में हमने सॉयल के अमाउंट तीनों में सेम है बट विदाउट एडिंग एनीथिंग, लेकिन इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, उसमें हम वाटर ऐड करते हैं इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग इन देम, उसके बाद उन्हें हम उन सीडलिंग को हम प्लांटिंग के लिए रखते थे। इट मीन्स प्लांटिंग सीडलिंग जो है आपके प्लांटिंग के लिए रखते हैं। कीप देम इन अ सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली, उसके बाद हम उन सीडलिंग में डेली हम वाटरिंग करते हैं उन्हें। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर विथ, ओके, आफ्टर 7 to 10 days वी विल ऑब्जर्व, उनकी ग्रोथ को हम ऑब्जर्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन फॉर यू, डिड ऑल द प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस, क्या सारे जो ग्लासेज में जो प्लांट्स थे क्या वो सेम टाइम पे सेम ग्रोथ होती है उनमें। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, कौन सी ग्लास में प्लांट की बेटर ग्रोथ होगी। इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट, और किस ग्लास में प्लांट की जो सीडलिंग है उसकी ग्रोथ फास्टेस्ट होगी। टेल मी द आंसर। ओके, इट इज इन बी, क्योंकि बी में क्या था आपका बेटा, यूरिया। ओके, यूरिया इज अ फर्टिलाइजर्स। ओके, एंड ऑल प्लांट्स की क्या होगी, ग्रोथ सेम नहीं होगी। क्लियर, और बेटर ग्रोथ के लिए क्या है बेटा आपका, बी ग्लास इज एप्रोप्रिएट। नाउ फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी विल ऑब्जर्व, इस एक्टिविटी से हमने ये ऑब्जर्व किया कि क्यों ऐसा हुआ, फर्टिलाइजर्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स में क्या डिफरेंस है। नेचुरल फर्टिलाइजर्स दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड दीज आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्री। क्लियर, देन दे आर नॉट रिच इन एब्जॉर्बेबल न्यूट्रिएंट दैट कैन बी टेकन इन बाय प्लांट, इसमें कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं बट दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट, दे कैन बी इजिली एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। दे इंक्रीज ह्यूमस इन द सॉइल, जो नेचुरल फर्टिलाइजर होते हैं सॉइल में ह्यूमस को इंक्रीज करते हैं। दे डू नॉट इंक्रीज ह्यूमस इन द सॉइल। मैन्योर, कंपोस्ट एंड bark ऑफ नीम आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजर सर। यूरिया, potash, NPK, clear, nitrogen, phosphorus and potassium are example of chemical fertilizers. This is a difference between natural fertilizers and chemical fertilizers. Okay students, now irrigation we will discuss in next video. Okay beta, thank you so much.